Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. You're watching Aradhya Sharma, and those who don't know me, I'm Aradhya Sharma and I have recently cracked 2 interviews, one with SpiceJet and Indigo. And this is my Instagram handle. I'm an Instagram influencer and a content creator. So in this video we are going to discuss about how I cracked my SpiceJet's interview in just first attempt, and that too was my first ever interview of my life. So let's get started. Okay, so as you all know that I was in Frankfurt Institute and my course was almost about to end, and it was aviation module going on. So some of my classmates were asking me, Aradhya, tu ja interview ke liye, you should go, hum gaye, and like this was our experience and all. So I was like, no, actually I don't want to go for the interview because I'm not done with my 12th yet, and I think मैं एक बार 12th से complete हो जाऊँ, उसके बाद I'll go for the interview. But so many students were telling me कि नहीं ऐसा नहीं है, जा सकते हो. So I asked my aviation trainer and she said yes, you can go for the interview, but if you get selected they will put you on hold. So I was like okay, let's go for experience. And उस time पे Indigo and SpiceJet दोनों के interviews चल रहे थे. I did not want to go for Indigo because मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी. I just wanted to go for some other airlines interview so that I'll get to know either I'm able to answer the questions or not. So I chose SpiceJet as experience. मतलब मैंने सोचा एक experience के तौर पे मैं जाती हूँ. So this was the reason I went for SpiceJet's interview instead of Indigo's. So like I went for the interview and I did not know anything. I just searched on YouTube कि क्या क्या documents लेके जाने हैं. I went there. I made my resume one day before the interview, and I had this thing in my mind, Aradhya, you are born to become a cabin crew. That's it. This is your first interview. Go ace it. You don't need to get worried. You don't need to get nervous. You can do it. And I was the only person who was motivating myself. And I went for the interview. गई मैं अच्छे से तैयार होके. And first round was, there was this room, kind of a classroom, because वो Spice Star Academy था, SpiceJet का academy. For example, Indigo का जो academy है, it is called iFly. So हम लोग वहाँ पे गए. वहाँ जाके I got to know कि register भी करना है. So मैंने register किया. It was very easy. Just search SpiceJet hiring events. फर्स्ट जो लिंक आएगा उसमें डेट्स आ जाती हैं, उसमें अप्लाई नाउ करके होता है, वहाँ पे यू हैव टू रजिस्टर. सो मैंने रजिस्टर किया एंड कुछ नहीं, आधार कार्ड और यही कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें डालने थे. आई रजिस्टर्ड. आई गॉट अ कोड. सो देयर वाज दिस रूम एंड उसमें हम लोग बैठे हुए थे. आई गेस कम से कम होंगे 30-40 बच्चे, 40 से ज़्यादा होंगे, 50 स्टूडेंट्स नहीं, आई मीन कैंडिडेट्स. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि एक एक करके एक मैम आगे बैठी हुई थी कंप्यूटर के आगे, एक एक करके वो सबको बुला रही थी. एंड शी वॉज आस्किंग जस्ट रैंडम क्वेश्चंस, एनीथिंग रैंडम. लोग प्रिपेयर करके जाते हैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए कि मतलब रट के क्वेश्चंस जाते हैं, तो वहाँ भूल जाएंगे आप. रट के मत जाइए. मेक योर इंग्लिश ग्रेट कि आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर करने के लिए एबल हो पाएँ. सो like she asked me few questions. Hey, you're Aradhya, right? So कहाँ से belong करते हो आप, and why do you want to become a cabin crew? Just basic normal questions, and I was able to answer those questions in a really good manner. So then I went for the second round, which was BMI. So they checked our weight and height, and then there was this HR, like she was junior I guess. So she asked a very random question, Aradhya, what kind of music you like? Because in my resume it was written that my interests, उसमें लिखा हुआ था music. So मैंने बता दिया कि मैम I like soft songs. Very normal answer I gave क्योंकि I was not at all prepared. इंटरव्यू से एक दिन पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ सीन भी हो गया था. But yes, I had this thing कि आराध्या नर्वस नहीं होना है, करना है, सेलेक्ट होना है बस.
Trust me, I was not scared at all, I was not nervous at all, and people were getting rejected like this. मतलब they were telling people कि you can leave for the day, you can leave for the day. हर एक बंदे को they were like you can leave for the day. उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा था डर कि मुझे ना ऐसा बोल दें, but somehow I managed to go for the third round, which was personal interview, and there was this HR. She was taking our interview, and like I was waiting outside the room, and so मैं गई. I entered with a smile on my face, and I was standing really straight like this, and I was having a very pleasant smile on my face. And जब तक उन्होंने बैठने नहीं बोला मैं नहीं बैठी, मैं खड़ी थी अपना पर्स लेके, हाथ में फ़ाइल लेके. सो शी वॉज लाइक ओके राध्या हैव अ सीट. आई सेड थैंक यू मैम. सो उन्होंने मेरे से रैंडम क्वेश्चंस किए, बहुत रैंडम क्वेश्चंस. आई एम टेलिंग यू, डू नॉट लर्न क्वेश्चंस कि आप रट्टा मार के जाओ कि हम तो यही बोलेंगे. मेक योर इंग्लिश परफेक्ट, मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट, कि आपसे कोई भी कुछ भी पूछे तो यू आर एबल टू आंसर in a really great manner and in a really fluent manner, right? So she literally asked out of syllabus questions about my family, about what I did yesterday. यही सब questions होते हैं usually. उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा था, I don't remember clearly in my mind. So यही सब था. Why do you want to become a cabin crew? And why at this age, Aradhya? You're very young. You should enjoy your life instead of working. You're very young. You should not go for jobs and all at this age. So I was able to answer in a really great manner. And then this was our third round. So after my third round, like what happens, I got a little scared here that I had this hole on my whole cheeks. I had these small bumps at that time, and makeup की वजह से वो और उभर के दिख रहे थे. So she was like, Aradhya, could you please pull your hair back? मैंने किया. She was like, show me your face. I was like, oh my god, now I'm getting rejected. So I was like this कि okay ma'am, देखिए face. So she said, Aradhya, you have so many bumps on your face. How did this happen? And heat of the moment मुझे समझ में नहीं आया. मैंने बोल दिया मैम, I think it happened because of summers. But those were whiteheads trapped on my face. बहुत सारे थे जो कि हटते नहीं थे. I don't know कैसे. Trust me, मैंने बहुत महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए, कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था. So like उन्होंने ऐसे चेक किया and she was like, Aradhya, if you are comfortable in removing your makeup from your cheeks, we want to see your face. I was like, okay ma'am, I'm comfortable. मैं वॉशरूम गई, I removed this part of मेकअप. सो उन्होंने बोला कि शो मी योर फेस अगेन. मैं फिर से गई. शी वॉज लाइक ओके राध्या, यू कैन गो. आई वॉज लाइक मैम, आई हैव टू गो होम और जस्ट इन दी वेटिंग एरिया. शी सेड नो नो नो, यू डोंट हैव टू गो होम, जस्ट गो वेट इन दी वेटिंग एरिया. सो एक रूम था जहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स थी जिनका इंटरव्यू हो चुका था. दे वर वेटिंग देयर. मैं वहाँ जाके बैठी. वहाँ का माहौल अच्छा था. ऑनेस्टली इट वॉज़ वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट. वहाँ पे उन्होंने आते ही बोला, ओह यू आर हियर, यू आर लकी यू आर हियर. आई वॉज लाइक हाउ. शी सेड 3-4 लड़कियाँ थी. उन्होंने बोला कि यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं दे आर वेरी लकी, यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था. आई वॉज लाइक ओके. सो मैं बैठी. एंड प्लस पॉइंट वॉज दैट एवरी पर्सन आई टॉक्ड टू, every person was asking me, are you experienced? Have you worked there earlier? Are you an experienced crew? And I was like, no, I'm a fresher and this is my life's first interview, trust me. And they were like, no, you are experienced, don't lie to us. And I was like, नहीं भाई, मैं पहली बार ज़िंदगी में इंटरव्यू देने आई हूँ. तो हम बैठे, हमने काफ़ी सारी शिट चैट्स की कि क्या क्वेश्चंस थे एंड ऑल. और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप इंटरव्यू में से चिट चैट्स कर रहे हैं, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर थॉट्स. कुछ भी जो आ रहा है दिमाग में वो मत बोलने लग जाओ. इम्प्रेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है. देयर वाज दिस गर्ल, शी वाज
लाइक कि मैं तो रिजेक्ट हो जाती हूँ हर बार, मैं तो 10-10 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, यू कैन लीव फॉर द डे सुनने की तो आदत ही पड़ गई। आप अपने आप को डिग्रेड क्यों करके दिखा रहे हैं किसी को भी? आपको ऐसा नहीं दिखाना है। आप कम बोलिए बट अच्छा बोलिए जो भी बोल रहे हैं, अपने बारे में बुराई मत करिए वहाँ बैठ के कि यार मैं तो रिजेक्ट हो जाती हूँ हमेशा। आप अगर ये रोना वहाँ गाएंगे तो आपका ही इम्प्रेशन कैंडिडेट्स के बीच में डाउन हो जाएगा। तो देन उसके बाद शी केम दी HR जिन्होंने BMI चेक किया था, शी वॉज एक एक करके वो बुला रही थी हमें एंड हमारे हैंड्स चेक कर रही थी, एल्बो से नीचे तक के हैंड्स हमारे चेक कर रही थी एंड हमें स्टॉकिंग्स उतरवा के हमारे लेग्स चेक कर रही थी एंड हमारा फेस चेक कर रही थी और पूछ रही थी आपके कोई टैटूज एंड ऑल है या नहीं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ यू हैव टैटूज, अगर वो यूनिफॉर्म के अंदर छुपे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ टैटू ऑन माई बैक, आई हैव अ टैटू हियर, आई हैव अ टैटू हियर, सो ये मेरे स्लीव्स में कवर हो जाएंगे, बैक का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इतने मेरे टैटूज इस एरिया पे ही हैं जो कि कवर हो जाएंगे। अगर वो कवर हो जाते हैं तो यू आर एलिजिबल एज अ कैबिन क्रू। सो उन्होंने मेरे लेग्स देखे, शी वॉज लाइक परफेक्ट। उन्होंने मेरे हैंड्स देखे, सो मेरा थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच मार्क्स है यहाँ पे, तो मैं उनको कंसील करके गई थी तो उतना दिख नहीं रहा था। अगर आपके कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो कंसीलेबल हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिगो हैज़ बिकम रियली स्ट्रिक्ट फॉर दिस, क्योंकि अब वो लोग कंसीलर मार्क्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो लास्ट ऑप्शन इज़ जस्ट गो फॉर दी ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, बट हाँ टेस्ट योर लक, आप कंसील करके जाइए, ज़रूर हो जाएगा, ट्रस्ट गॉड हो जाएगा, ठीक है। सो लाइक उन्होंने मेरे हैंड्स वगैरह देखे, उन्होंने मेरा फेस देखा एंड बोला आराध्या इफ़ यू गेट सेलेक्टेड यू स्टिल हैव टू गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट फॉर योर फेस, बिकॉज आपके फेस पे बहुत सारे बम्स हैं विच आर नॉट लुकिंग गुड। सो मैं जब आई थी ना अपने हैंड्स एंड लेग्स दिखाने के लिए, सो आपने देखा होगा HR कभी भी तारीफ़ नहीं करता या फीडबैक नहीं देता है। उन्होंने आते बोला आराध्या यू हैव रियली कंट्रोल्ड जेस्चर्स एंड वी आर रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। मेरे दिमाग में हो गया आराध्या तू सेलेक्ट हो गई तू सेलेक्ट हो गई। एंड देन उसके बाद हम अपना 4th राउंड विच वॉज फाइनल राउंड उसके लिए वेट कर रहे थे। सो व्हेन वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल राउंड शी कम्स the HR who checked our BMI, she was like okay guys, I'm really sorry to say that you all are not selected for today। हम डर गए कि हम सबको रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने बोला you have to come tomorrow at 11 AM sharp for your final round। So we were like okay ma'am। So I was not scared because I went there for just experience and I personally did not want to work with SpiceJet because Indigo was my dream airline। So the next day I went there, थोड़ा सा लेट हो गई थी, 11:03 में पहुंची थी मैं। I got late due to some reason and I went there, everyone was like so scared as hell, ऐसे था सबका फेस, बहुत हाँफ रहे थे लोग, डरे हुए थे, कोई पानी पी रहा है, कोई रो रहा है, ऐसा हाल था। उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे धक धक हुआ थोड़ा सा धक धक हुआ। देन जो मैम थी BMI वाली वो हमें लेके जा रही थी एक एक करके सीनियर HR के पास इंटरव्यू के लिए। सो जो HR होते हैं ना उनके आँखों में, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ एक्सपीरियंस, उनके आँखों में कुछ होता है हिप्नोटाइजिंग क्वालिटीज़ की आप जैसे उनके आगे बैठते हैं ना, वो आँखों से ही आपको ऐसे करके देखेंगे तो आप नर्वस हो जाओगे, बट वहाँ आपको नर्वस नहीं होना है, वहाँ पे आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करना है, ठीक है। सो ये लोग एकदम ऐसे करके देखते हैं और बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे हर एक क्वेश्चन में ना वो बाधा डालेंगे, वो बोलेंगे मतलब क्रॉस क्वेश्चंस करते रहेंगे, आप जो बोलोगे उसको उल्टा करके बना देंगे। सो आपको ना हर क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए, यू हैव टू गेट दीज कैपेबिलिटीज़, ठीक है। मैं गई वहाँ पे स्माइल करती हुई बहुत, एंड उनका फेस था बिल्कुल ऐसे रूड, अजीब सा ही था, मतलब कह रही हो ना नर्वस करने वाला फेस। सो मैं गई, मेरे से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कसम से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कम से कम उन्होंने 20 क्वेश्चन मेरे से किए होंगे। योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट दिस एज, इज़ दिस योर फर्स्ट इंटरव्यू, नो शी आस्क्ड कि तुमने कितने इंटरव्यूज़ पहले दिए हैं। सो आई टोल्ड हर दैट मैम दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू। एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे ही थे, तुम्हारे फादर क्या करते हैं,
मम्मा क्या करती हैं, एंड बहुत कुछ मेरे बारे में ही था यूजुअली क्वेश्चंस। एंड यस, शी वाज गिविंग मी सिचुएशंस ये देखने के लिए कि मैं उनको कैसे हैंडल करूँगी। एंड हाँ, वो ये भी ट्राई कर रही थी जानने का कि मैं गुस्सा होती हूँ या नहीं। शी सेड, आराध्या, एज यू टोल्ड अस दैट यू हैव अ सिबलिंग सिस्टर, सो लाइक इज शी अनोइंग, डज शी मेक यू एंग्री? एंड आई वॉज लाइक, नो मैम, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी ग्रेट, शी नेवर मेक्स मी एंग्री, एंड या दिस इज़ ह्यूमन नेचर। एंड हाँ, या मत बोलना कभी भी, येस बोलना हर चीज़ में। तो येस मैम, एक्चुअली she is a very great sister, she is very supportive, she never makes me angry because she is the best and she respects me a lot। मैंने ऐसा कुछ आंसर दिया था। एंड उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई बार बार इरिटेट करे, आप तब भी गुस्सा नहीं होंगे। आई वॉज लाइक, नो मैम, आई एम नॉट अ पर्सन हु गेट्स एंग्री easily, and instead of getting angry, I try to find solutions for that so that the other person gets okay। एंड ऐसे ही कुछ आंसर्स मैंने दिए थे। बट येस, रिमेंबर, आपको आंसर करते टाइम सिर्फ आई कांटेक्ट उनसे बनाना है, ना कि आप इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे ना, उनको समझ में आ जाएगा यू आर नर्वस एंड यू आर डन। घर का रास्ता फिर आप नाप लो अपना। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट उनके आंखों में देखिए, स्माइल रखिए, इवन इफ दे आर नॉट स्माइलिंग बैक, आप फिर भी अपने फेस पे स्माइल रखिए। सो उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे कि ओके राध्या, आई एम गिविंग यू दिस सिचुएशन कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, चिल्ला रहा है कंटिन्यूसली तुम्हारे ऊपर, तुम वहाँ पे क्या करोगे? तो मैंने उसका भी आंसर दिया कि मैं कैसे कैसे हैंडल करूँगी। सो आफ्टर माई फाइनल इंटरव्यू, द HR टोल्ड मी दैट ओके राध्या, यू कैन लीव नाउ। And I was again confused. I asked her, ma'am, I have to go home or I have to wait? She said, no, you don't have to go home, just wait, we'll announce the results। And then I was like, okay ma'am, thank you so much for your time। And I went back to the room जहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे। एंड हो क्या रहा था वहाँ पे ना, जो भी इंटरव्यू दे के आ रहा था वो एकदम सैड फेस में अंदर एंटर कर रहा था, बट मैं से जगमगाता हुआ चेहरा लेके अंदर आई। तो दे वर लाइक, ओ अच्छा गया तुम्हारा, अच्छा गया। आई वाज लाइक, यस मेरा अच्छा गया। एंड आप अगर इंटरव्यू वेन्यू पे बैठे हैं ना, आप किसी को डिमोटिवेट मत करिए कि अरे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, अरे बाप रे बहुत हार्ड है। आप ये सब मत बोलिए किसी को। अगर आपको लगता है ना कि आप ये सब बोलेंगे और आपका कंपटीशन डाउन हो जाएगा, तो बहुत गलत है, क्योंकि भगवान देख रहा है कि आप किसी का मोराल डाउन कर रहे हैं, गलत बात है। आप सबको मोटिवेट करिए। तो मैं इसी माइंडसेट में वहाँ बैठी हुई थी, मैं सबको मोटिवेट कर रही थी। जो भी लड़कियाँ डर रही थी, मैं उनको समझा रही थी, इट्स ओके, डोंट गेट स्केयर्ड, यू कैन डू इट, यू हैव द पोटेंशियल। मैं सबको मोटिवेट कर रही थी। एंड इट इज़ अ गुड थिंग। अगर आप भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप जब सबको मोटिवेट करेंगे ना, सबको अच्छा बोलेंगे, सबको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, सबके आगे स्माइल करेंगे ना, तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। आप ये चीज़ याद रखिएगा। सो वहाँ पे मैंने सबको मोटिवेट किया, सबके साथ काइंड बिहेव किया। एंड एट द एंड हम करीबन 9-10 लड़कियाँ उस कमरे में बैठे हुए थे। सो फाइनली एक मैम आती हैं कुछ लेके, एक पेपर सा, और बोलती हैं कुछ लड़कियों के नाम जिसमें मेरा नाम नहीं होता है, बट समवेयर आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि राध्या तू सेलेक्टेड है। उन्होंने कुछ नाम बोले एंड बोला कि लेडीज़, थैंक यू फॉर योर टाइम, यू कैन लीव फॉर द डे। एंड आई वाज लाइक, ओके, आई एम सेलेक्टेड। सो शी सेड, रेस्ट ऑफ यू गाइज आर सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे करके बोला उन्होंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस लेडीज़, यू ऑल आर सेलेक्टेड। एंड बस फिर तो देखो लोग रोने लगे, गले लगने लगे, मैं भी सबको हक करने लगी। बहुत प्यारी फीलिंग होती है व्हेन यू लिसन टू दिस थिंग, बहुत अच्छा लगता है। सो आई गॉट सेलेक्टेड। मुझे एक कार्ड सा मिला जिसमें लिखा हुआ था ऐसे कुछ करके कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर सेलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू पोजिशन, ऐसे करके था। एंड मुझे वो कार्ड मिला, मैं बाहर आई हंसती हुई, और मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था और मैं सेलेक्ट हो गई थी। इट वॉज द बेस्ट फीलिंग एवर। आई कॉल्ड माई पेरेंट्स and I told them that I got selected, and it was the best feeling ever, guys. So trust me, believe in yourself, just don't get nervous. I know it is very common to get nervous, but मत होइए nervous। आप ऐसा समझिए कि कोई रैंडम पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है और आप उसका आंसर दे रहे हैं।
अगर आप घबराएंगे, ओ माय गॉड HR है, ऐसा सोचेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, आप डर जाओगे ज़्यादा और आपके चेहरे पे वो चीज़ दिख जाएगी। आपको दिखाना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको स्माइल हमेशा फेस पे रखना, आई कांटेक्ट बनाना है। सो दिस इज़ हाउ आई cracked my first ever interview of life, and hope you all are able to understand the concept जो मैंने यहाँ पे बताया है। एंड प्लीज़ जाइए, इंटरव्यू दीजिए, घबराइए मत, इट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप कंफ्यूज्ड और नर्वस नहीं हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप ज़रूर जाइए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए अपना, डोंट गेट स्कैर्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।